back. Thanks a lot for staying with us. We're now getting some updates coming in. We're now understanding, as part of that fierce encounter that is still underway between Sidhu Moosewala's killers and the Punjab police, a journalist also has been injured in this encounter. Look at the visuals that we're putting out on our screens as well. As I pointed out, that encounter is still underway between the shooters of Sidhu Moosewala and the Punjab police. All of this taking place in Amritsar. CNN News 18 is at the spot of the encounter, tracking all of these updates. The update that we're now getting in, a journalist has now been injured. कवरेज कर रहे थे अचानक उत्थे कवरेज करते करते सिकंदर ने एकदम झटका वजा मेरे नाल खड़ा तो मैं कोशिश की कि इन्हू भी पता नहीं क्यों होया तो फिर मैं देखा उत्थे कितनी दूरी पर खड़े हैं पता नहीं काफी जो 315 की फायरिंग काफी तेज हुई थी ना उस समय की बात है सर जी। तो क्या नाम है? सिकंदर अपना एक कैमरामैन है जिसको के गोली लगी है So we're now understanding the details that we're picking up from the soundbite that you heard of eyewitnesses who are also journalists, that this is in fact a camera person, a video journalist who was in fact covering this entire encounter now has been injured. But as I pointed out, a fierce encounter is still underway between the shooters of Sidhu Moosewala and the Punjab police. All of this taking place in Amritsar, and we're understanding it's just about 13 to 14 kilometers away from the international border as well. My colleague Manoj is also now joining us with more details. Manoj, any more details that we first have as far as this journalist who's been injured? क्या और जानकारी है कि कौन है ये जर्नलिस्ट जिनको चोट लगी है? बिल्कुल, जो अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो जर्नलिस्ट है वहीं पर लोकल, जो वहाँ के जो एरिया की लोकल जर्नलिस्ट है जिन गोली लगी है। लेकिन इससे पहले भी हालांकि पुलिस ने सरेंडर करने के लिए जब इनको कहा था तो पूरा एरिया, जो पूरा विलेज है, उसको पूरे घर में उनके जो अनाउंसमेंट की गई थी कि घर जितने भी वहाँ लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको पहले ही अनाउंसमेंट की गई थी कि वहाँ घर से ना निकले, क्योंकि जो गैंगस्टर है मनु कुशा और जगरूप रूपा, सिद्धू मूसेवाले जो मर्डर के बाद ये दोनों ही फरार बताए जा रहे थे। और हमने आज न्यूज 18 ने सुबह ही ये जानकारी दी थी, तो अभी भी वो उसी एरिया में है। तो एक खबर पर मोहर जरूर लगी है न्यूज 18 की। और दूसरी, क्योंकि हमने जो बताया था कि अमृतसर के जो बिल्कुल साथ लगता तरन तारण है, वहां पर एक गांव है गुलालीपुर, फर्स्ट वीक में जुलाई के वहां पर इन दोनों को देखा गया है। और जिन्होंने इनको स्टे किया है वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर है। उनका बताया जा रहा है कि संदीप तूफान और मनी रैया, ये भी दोनों गैंगस्टर हैं जिन्होंने इन दोनों को पनाह भी दी है, काफी समय पनाह दी है। क्योंकि 21 जून की एक सीसीटीवी सामने आई थी जो न्यूज 18 ने प्रायोरिटी पर थी, जिसमें मोगा के एक विलेज सामलसर में भी इन दोनों को देखा गया था। यानी कि ये पंजाब में ही वारदात को अंजाम देने के बाद अलग अलग जगह से अपने ठिकाने बदल रहे थे। प्रीवियस फौजी को जब गिरफ्तार किया था स्पेशल सेल ने, जो शूटर था, उसने भी ये जानकारी दी थी कि ये दोनों पंजाब में ही रुके थे, ये हमारे साथ नहीं आए। इन्होंने कहा था कि पंजाब में हम सेफ हैं, हम यहीं छिपेंगे। हालांकि अब ये दोनों अलग अलग ठिकाने चेंज कर रहे थे। अमृतसर के साथ में तरन क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर एरिया साथ है, तो इनकी पूरी कोशिश थी कि ये क्रॉस करने की भी फिराक में थे कि पाकिस्तान घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਸਵੈਟ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एक बार फिर तुसी आवाज़ सुन पा रहे होगे कि लगातार फायरिंग जी है वो फिर एक बार हो रही है। तो ये एक अपने आप दे विच वड्डी गल जरूर है कि जिहड़े गैंगस्टर ने वो भी हुण जो टैररिस्ट ने या जिहड़े अतवादी ने उन्हां दे वांग ही पूरी तैयारी दे विच यानी कि रहिंदे ने कि जेकर इस तरीके का इनकाउंटर पुलिस वालों करन दी कोशिश की जाती, क्योंकि
ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ Colleagues from News 18 Punjab are pointing out you can still hear the gunfire. The police is also trying to sanitize the area and also requesting people to stay indoors because that encounter is still on. That fierce encounter is still on as we speak. Let's also now look at some of the most dramatic pictures coming in from the encounter site. So as we said, that fierce encounter still on, gunfire still can be heard. Unfortunately, one journalist also has been injured. My colleague Manoj is now back with us. So Manoj, काफी घंटों से ये एनकाउंटर चल रहा है. जो लास्ट अपडेट हमारे पास था कि एक गैंगस्टर की हत्या हो गई है. अभी और कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जो अभी तक अपडेट मिल रहा है कि एक गैंगस्टर की इसमें मार गिराया है, लेकिन दूसरा गैंगस्टर वो कंटिन्यूज जो AK-47 बताई जा रही है, AK-47 से फायरिंग कर रहा है, क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर वहां है, क्योंकि 3 जो पुलिस वाले हैं उनको वो इंजर्ड हुए हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है, लेकिन अभी भी जो अंदर से जो गोलियां चल रही हैं AK-47 की बताई जा रही है, और अभी भी की जा रही है कि जिस घर में वो मौजूद है, हालांकि उसको पूरा सील कर लिया गया है, आगे बिल्कुल आसपास जितनी भी जो कमांडोज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन सेल की पुलिस है, जो एंटी गैंगस्टर टीम के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरा कवर कर लिया है उस घर को, और अब कुछ ही कह सकते हैं कि मौका देकर कुछ ही मिनटों में उसको दबोच सकती है पुलिस। वो जो अंदर मनु खोसा, कह सकते हैं कि मनु खोसा है या जगरूप रूपा है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है, क्योंकि मरा कौन है, किसकी डेथ हुई है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन पुलिस जो सोर्सेज बता रहे हैं कि बस तैयारी है कि किस तरह से उसको दबोच लिया जाए, क्योंकि कई राज, कई ऐसी चीजें, कई हथियार अभी रिकवर करना बाकी है, और कौन कौन लोग इनके साथ थे, कितने दिन इन्होंने क्या साजिश जो है वो रची है सिद्धू मूसेवाले मर्डर के बाद, और कौन कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी चीजों के खुलासे अभी करना बाकी है। इनसे पूछताछ में कोशिश यही की जा रही है कि इसको जिंदा पकड़ा जाए। हालांकि अंदर से जरूर ये फायर करता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस ने जो अभी की अपडेट है कि पूरा जो घर है जो जिसमें ये अंदर छुपे हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं, उस पूरे घर को आसपास के एरिया से पूरा सील कर लिया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस के पास हैं, जो कमांडोज हैं उन्होंने पूरी जैकेट वगैरह पहन के तैयारी है कि किसी तरह इसको दबोच लिया जाए, और इसके बाद इसको पकड़कर सारे राज जो है वो खोले जाएंगे, क्योंकि हथियार अभी भी इसके पास है। प्रेवत फौजी ने जब उसको अरेस्ट किया था तो प्रेवत फौजी ने भी ये बात कही थी कि जो आधे हथियार मेरे पास है और आधे हथियार मनु खोसा के पास है, लेटेस्ट वेपन मनु खोसा के पास है, और वो बात सच निकली। AK-47 से ये फायरिंग कर रहा है, AK-47 इसके पास मौजूद है, ये वही AK-47 है जिससे सिद्धू मूसेवाले को इन्हें मर्डर किया था, क्योंकि सबसे पहली गोली मनु खोसा ने ही चलाई थी सिद्धू मूसेवाले पर। करोला गाड़ी से उतरकर सबसे पहला फायर इसने किया था, और बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का ये बहुत ही वफादार गुर्गा है, और गोल्डी बराड़ ने कहा था कि मनु खोसा सबसे पहले गोली चलाएगा, क्योंकि मनु खोसा की बम्बिहा ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा अनबन है, दुश्मनी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मनु खोसा को एक बार जेल में जब ये बंद था, तो जो एंटी ग्रुप है लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप, बम्बिहा ग्रुप, उन्होंने बुरी तरह से मारपीट की थी, बुरी तरह से इसको मारा पीटा था, काफी कुछ इनके बीच में विवाद हुआ था, और उसके बाद से ये लॉरेंस ग्रुप के साथ मिलकर लगातार बम्बिहा ग्रुप या फिर जो उनके साथी हैं उनके साथ लगातार जो है लड़ाइयों में शामिल रहा है, और शार्प शूटर भी मनु खोसा है। इसलिए इसको पकड़ना, जिंदा पकड़ना बहुत जरूरी है, और इससे जो राज है, जो वेपन इसके पास से कहां से आए, किस किसने इनको स्टे करवाया, और कौन कौन